Today's topic of discussion is periodic table, the very most important chapter, and you can say the foundation of inorganic chemistry is nothing but periodic table. The very important contribution of Mendeleev in chemistry, correct? And obviously, we are not using the periodic table given by the Mendeleev. He's called the father of periodic table. We are using the long form periodic table. You can say it modern periodic table given by the Henry Moseley. But the contribution of Mendeleev is enormous. You can never ignore it because most of the things in our periodic table we use as it is. When you go through the NCRT, you'll get a deeper understanding how the periodic table and the concepts are evolved from the very starting, right? The how the elements are arranged in periods and groups, and they're categorized so that the study of them will become much more easier. So it's all about, you must go through it, and very interesting things you will know about it, right? And as I already discussed that physics is very understanding and conceptual subject, but chemistry is somewhat you should not ignore, because chemistry is savior. Without chemistry you cannot crack the exam, right? Chemistry आप सबसे पहले करते हो and you score the most in chemistry. And chemistry में क्या है ना कि questions are relatively easier, and you can easily attempt it. And definitely you must go through these concepts. आपको इसमें ज़्यादा कुछ calculation नहीं करना है, आपने बस पढ़ा है, आपको आता है आंसर, you can directly take the answer, right? So we can start with the first question. The question is, consider the elements nitrogen, phosphorus, sulfur. तो होता क्या, first you can arrange it according to the periodic table, राइट? तो पीरियोडिक टेबल में इनका अरेंजमेंट तुम्हें पता होता है, उसको बस एक बार चेक कर लो. और अगर मैं देखूं इसमें ये जो एलिमेंट्स आर गिवन, सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, दे आर from same group, nitrogen, phosphorus, and oxygen, sulfur, and fluorine, chlorine. जिस तरीके से अरेंजमेंट है आप निमोनिक बना के याद करोगे, whatever they are, and उनको एक बार समझ लोगे, समझ के आप लर्न कर लोगे, देन आपको उनकी आइडिया लग जाएगा how their behavior changes group wise. And obviously there are exceptions, right? And exceptions का भी reason होता है, right? Because they are half filled things are there, and electrons are not easily removed from the valence shell. Definitely the reason is also there for the exception. Okay, so the question is about the metallic character. तो अगर आप देखोगे तो इसमें सारा तो नॉन मेटल ही दिख रहा है, राइट? लेकिन बट इवन इफ दे आर नॉन मेटल, दे हैव द मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो. तो इनमें से भी जो मोस्ट मेटालिक है और जो मोस्ट नॉन मेटालिक है, तो यू नो दैट द जब हम अक्रॉस द पीरियड ऐसे जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, बिकॉज यहाँ से हम नॉन मेटल शुरू होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो फर्स्ट ग्रुप होता है दैट इज द मोस्ट मेटालिक, राइट? और डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है. तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर हो जाएगा फ्लोरीन का. और सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास इंक्रीज करेगा. सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर तो ये वाला हो जाएगा मेरे पास मोस्ट मेटालिक, और ये वाला हो जाएगा मेरे पास मोस्ट नॉन मेटालिक, या फिर कह सकते हो लीस्ट मेटालिक. मोस्ट नॉन मेटालिक बोल दो या फिर बोल सकते हो लीस्ट metallic, right? तो what the question is asking, the most and the least metallic character में valence electrons, right? तो इसमें valence electron obviously 7 होता है, and इसमें valence electron कितना होता है? नाइट्रोजन ग्रुप में 5 होता है. तो most metallic character में valence electron is 5 and 7. So simple answer is 5 and 7. डायरेक्टली देख के टिक कर सकते हो, तो क्वेश्चन इज वेरी इजी. तो देख लो क्वेश्चन हमेशा इसका इजी ही होता है, एक बार देख के टिक हो जाता है. And second question is in the period 4, फोर्थ पीरियड में क्या होता है आपका? पोटेशियम, कैल्शियम, राइट? तो ये आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम से लेके जो लास्ट एलिमेंट अगर हेलोजन में देखोगे तो ब्रोमीन जाता है, और फिर यहाँ पे इनर्ट गैस होती है, राइट? तो अगर हम देखेंगे, ये फोर्थ पीरियड की बात मैं कर रही हूँ, दिस इज फोर्थ पीरियड. तो फोर्थ पीरियड मीन्स यू हैव 4 शेल्स. नंबर ऑफ पीरियड डिफाइंस द शेल्स, करेक्ट? एंड द विद हाईएस्ट एंड एटॉमिक रेडियस. तो एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है, क्योंकि उसमें आपका जो है मास नंबर इंक्रीज करता है, राइट? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है. तो हमें लोवेस्ट एटॉमिक रेडियाई और हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई, तो हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई डेफिनेटली पोटेशियम का हो जाएगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ग्रुप का है एंड दिस इज 17th ग्रुप. तो ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था.
10th लेवल का, तो पोटेशियम एंड ब्रोमीन विल बी योर आंसर. Next question is carbon dioxide is most acidic oxide among the dioxide of the 14th group. So you must know the elements of the 14th group, that is कार्बन वाला फैमिली होता है. तो हमें पता होता है कि कार्बन फैमिली में अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास इंक्रीज करता है. मेटालिक कैरेक्टर से मतलब क्या, मेटालिक कैरेक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर सकता है, वो मेटल है. metal have a tendency to donate electron very easily, right? तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब क्या, जब रेडियस बढ़ती है, जब शेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगी, जब रेडियस बढ़ेगी तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि वहां से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो जाता है, राइट? तो चाहे भले वो पी ब्लॉक एलिमेंट अगर देखोगे तो पी ब्लॉक में तुम्हें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब मिलता है. क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, राइट? तो हमें पूछ रहा है कि एसिडिक ऑक्साइड, तो तुम्हें पता होता है एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर मोस्ट एसिडिक, राइट? तो टॉप पे सबसे बड़ा नॉन मेटल रहेगा, तो नॉर्मल जो हमारे पास नॉन मेटल रहेगा वो हमारे पास सबसे ज्यादा नॉन मेटल जो रहेगा कार्बन फैमिली में वो कार्बन ही रहेगा, क्योंकि कार्बन से नीचे अगर आप जाओगे तो कार्बन के नीचे आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम यानी कि मेटलॉइड मिलने लगेंगे, लास्ट में मेटल मिलने लगेगा, करेक्ट? तो नॉन मेटल जो होगा उसका ऑक्साइड ही सबसे एसिडिक होगा, तो CO2. ये करेक्ट बोल रहे हैं कि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ध्यान रखना है ना. कार्बन एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अलोंग विद +4 +2. तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेटली कार्बन शो करता है कब, लाइक मीथेन में अगर आप देखोगे तो मीथेन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -4. कार्बन डाइऑक्साइड में इसका कितना है, +4, राइट? तो कार्बन +2 +4, कार्बन मोनोऑक्साइड में +2 हो गया, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में +4 हो गया, और माइनस ये शो करता है कार्बन एग्जिबिट्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज आल्सो करेक्ट. नेक्स्ट, कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंसी मोर देन 4. बिल्कुल सही बात है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी उसकी 4 होती है, 4 से ऊपर नहीं होगी. एंड लास्ट वन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट, मुझे यही ढूंढना था, तो लास्ट वन विल बी योर आंसर एंड दिस वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि लास्ट में क्या कह रहे हैं ना कि कार्बन 13, तो कार्बन 14 जो होता है ना दैट इज रेडियो एक्टिव. रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से ऑटोमेटिकली सम एमिशंस निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा टाइप के, ठीक? तो ये इवन आपका रेडियो आइसोटोप भी होता है. जनरली ये आपका 82 के अबव जब मास नंबर जाता है तो वहां पे एमिशंस निकलते हैं. क्लास 12 में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है उसमें न्यूक्लियस वाला, करेक्ट? लेकिन पीरियोडिक टेबल में भी समझ सकते हो जो कार्बन 14 होता है दैट इज रेडियो एक्टिव. तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया, हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, दैट मींस डी विल बी योर आंसर. And the next question is about second ionization potential. देखो यहाँ मिस मत करना, कभी होता क्या है कि बच्चे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको टिक कर देते हैं. तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एलिमेंट तो सिंपल है, तुम्हारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट दे रखे हैं और इसका सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखना है. तो पहली चीज क्या है, इनके कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लिया करो. इसका क्या होगा, से ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास 2s2 2p4 हो जाएगा, 14th पीरियड का है, और ये वाला क्या हो जाएगा 2s2 2p5 हो जाएगा, एंड दिस वन इज 2s2 2p3, एंड कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन का आपका ऑब्वियसली 2s2 2p2, तो यहाँ पे 2s2 2p2 2p3 2p4 2p5, करेक्ट? तो अब हमें सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, करेक्ट? तो अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे फर्स्ट आयनाइजेशन IE1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास 2p4 और इसमें हो जाएगा 2p3, ये आफ्टर IE1 की बात करूं, एंड आफ्टर दैट दिस विल बिकम 2p2 एंड दिस विल बिकम 2p1. तो मुझे जो लिखना था दैट इज नॉट फॉर IE1, नॉट फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, हमें जो ऑर्डर बनाना है दैट इज फॉर द IE2 सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट ऑब्वियसली किसका होगा, जो हाफ फिल्ड है. तो हाफ फिल्ड कौन सा हो गया, ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज हाफ फिल्ड नाउ, सो ऑक्सीजन का मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, और ऑब्वियसली उसके बाद में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हाइड्रोजन से मुश्किल होता है, तो ये वाला 2p4 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो देन यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन. तो CnFO first part is the answer, right? So you can simply write the configuration, SPDF configuration. After that you can just arrange it according to the ionization energy or ionization potential and energy, both are same. नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चन. तो देख रहे हो क्वेश्चन, इसमें कुछ भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना. अगर आपने चैप्टर को ठीक से रीड किया है, एनसीईआरटी पढ़ लिया है, तो आपके क्वेश्चन सारे बन जाते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर हमें पता है कि ऑब्वियस सी बात है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। पोटेशियम फोर्थ पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है। एंड ये वाले दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे पास मैग्नीशियम इज थर्ड पीरियड एंड एल्यूमिनियम इज थर्ड पीरियड। अब बोरॉन तो नॉन मेटल में सबसे लास्ट में दिया हुआ है और ये दोनों थर्ड पीरियड के हैं। और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कैसा होता है, यहाँ मैग्नीशियम सेकंड पीरियड में होता है और हमारे पास एल्यूमिनियम 13th में होता है, बीच में 10 हमारे डी ब्लॉक के भी होते हैं, राइट। ये 13th पीरियड का होता है और ये वाला सेकंड पीरियड का होता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा मेटालिक होगा, डेफिनेट सी बात है मैग्नीशियम विल बी मोर मेटालिक देन एल्यूमिनियम। तो ये एकदम करेक्ट दिया है मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर। सेकंड स्टेटमेंट, एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आयनिक रेडियस। देखो आयनिक में इसने ये मेंशन नहीं किया कि केटायनिक की बात कर रहा है या एनायनिक की, तो हम क्या नहीं सकते, तो हम नॉर्मली इन जनरल आयनिक रेडियस लेके चलेंगे दोनों को। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट सपोज एक्स ले लेती हूँ, तो एक्स अगर मेरा न्यूट्रल एलिमेंट है, तो अगर एक्स माइनस होता है मतलब एनायनिक रेडियस हमेशा सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो रिपल्शन की वजह से रेडियस इंक्रीज कर जाती है। एंड आफ्टर दैट जो रेडियस होती है केटायनिक सबसे लीस्ट रेडियस होती है, राइट। तो हमेशा यही ऑर्डर होता है। तो बोल रहा है एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनिक रेडियस। तो अगर एनायनिक है तो ज्यादा नहीं होगा ना एटॉमिक रेडियस। तो जो न्यूट्रल वाला होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस एंड दिस इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, तो ये इनकरेक्ट हो गया, राइट। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। सो फर्स्ट वन इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ये वाला हो जाएगा, राइट। तो ध्यान देना इसमें अगर क्वेश्चन में एनायनिक या केटायनिक बोल देता तो उसका स्पेशलाइज्ड केस हो जाता, तो इस अकॉर्डिंग हम अरेंज उसको कर सकते थे, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लार्जर देन करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, राइट। तो सेकंड आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, तो सोडियम तो हमें पता है कि दिस इज थर्ड पीरियड एंड लास्ट जो होगा उसका 3s1 होगा वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन एंड इसका वैलेंस शेल मैग्नीशियम का 3s2 होगा। तो अगर हमें सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है तो फर्स्ट में ही ये इनर्ट गैस एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव होता है, तभी ये किसकी तरह बन जाता है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेता है, राइट। तो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेटली ज्यादा होगी क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के बाद इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इट टेक्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इट फर्दर, राइट। तो यहाँ पे आपका जो मैग्नीशियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तब इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन आएगा, राइट। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो सोडियम की हमेशा ज्यादा ही होगी। तो बिल्कुल सही कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड वन इज O2 माइनस एंड F माइनस। अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मींस दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दिस इज 10 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन हैज एक्सेप्टेड 2 इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसका एनायन ज्यादा होता है उसकी रेडियस डेफिनेटली ज्यादा होती है, तो आयनिक रेडियस O2 माइनस की ज्यादा होगी। सेकंड स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो डी पर स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। देखो ये वाला टेबल से आया है एनसीईआरटी की, तो तुम्हें थोड़ा इसमें डेटा का आइडिया होना चाहिए। इसमें ये पूछ रहा है एलिमेंट एक्स एंड वाई बिलोंग टू 15th ग्रुप। 15th ग्रुप का कौन सा होता है, नाइट्रोजन वाला फैमिली है ना। तो नाइट्रोजन फास्फोरस वाली फैमिली, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, राइट। तो अभी यहां से अगर हम देखें तो क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एंड फास्फोरस। कोई भी एलिमेंट एक्स है इसका कोई भी, उसका हमें फास्फोरस से कंपेयर करना है। तो फास्फोरस से कंपेयर करना है इज हायर, तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इसका तुम्हें डेटा थोड़ा सा याद होना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है अपने ग्रुप में, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 और फास्फोरस की होती है अप्रोक्सीमेटली 2.2। तो फास्फोरस और आर्सेनिक की ऑलमोस्ट इक्वल होती है, यहाँ से 2.1 और 1.9 के आसपास होती है। अगर टेबल में चेक करोगे वहां दी हुई है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो हाईएस्ट होता है किसका, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन का। तो डिफरेंस की ही बात कर रहा था, तो डिफरेंस हाईएस्ट नाइट्रोजन का होता है। अगर सारा नहीं पता हो तो मोस्ट तुम्हें पता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन से ही फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाता है कि दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट, राइट। The next question is correct trend in the first ionization enthalpy of the elements in the third period of the periodic table. तो थर्ड पीरियड जो पीरियोडिक टेबल की है उसमें क्या है, सोडियम मैग्नीशियम ये सारे हैं। इसमें अगर हम देखें सारे थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इसमें हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। फर्स्ट, इस पर ध्यान रखना, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का बताना है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब रिमूवल ऑफ
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में क्या रहेगा तुम्हारे पास 3p5 है ना, और फॉस्फोरस की देखोगे तो तुम्हारे पास 3p3 रहेगा, 3p3। और एल्यूमिनियम और सल्फर, तो अगर हम इसमें चेक करेंगे तो जो हाफ फिल्ड होता है नॉर्मली अगर इस तरीके से बनाओ तो थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, करेक्ट। तो अगर हम इस तरीके से सिलिकॉन, ठीक है, तो सिलिकॉन नीचे आएगा, सिलिकॉन हमारे पास इसमें है। तो अगर हम देखें किसमें फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी हमेशा किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की हाईएस्ट होगी। क्लोरीन के बाद अगर ये वाला तुम्हारे पास हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड का मतलब अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो ये 3p3 आएगा। तो क्लोरीन के बाद तुम्हारे पास आएगा किसका, फॉस्फोरस का, और फॉस्फोरस के बाद में हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है ना, तो देखो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए सबसे लीस्ट एनर्जी किसको चाहिए होती है, मेटल्स को। तो मेटल्स कैन इजीली रिमूव देयर इलेक्ट्रॉन विद अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अगर इस समय देखेंगे तो मेटल के नाम पे सिर्फ एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम हुआ, एल्यूमिनियम में सबसे कम एनर्जी लगेगी, राइट। तो एल्यूमिनियम के बाद में अगर इन दोनों में देखो पहला एल्यूमिनियम है, तो बाकी दोनों तो अपने आप ही कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों एलिमिनेट ही हो जाते हैं, इन दोनों में नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम में से अगर हम इसमें से चेक करें तो एल्यूमिनियम के बाद देखो ये मेटलॉइड है ना, मेटलॉइड है, नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो सल्फर और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस हाफ फिल्ड होता है, तो आंसर ये वाला हो जाए, क्योंकि हाफ फिल्ड में ज्यादा एनर्जी लगेगी, राइट। तो तुम आराम से एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो इसको। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी वैल्यूज, ये गिवन है। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का मतलब अगर हम इसके ऑर्डर को चेक करें, बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, ये सारे ही सेकंड पीरियड के हैं, तो ये मेरे पास आएगा 2p5 एंड ये वाला कितना आएगा 2p3। एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, हाइड्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी वैल्यूज हाईएस्ट होती है, तो इधर से हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी वैल्यूज इंक्रीज करती हैं, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है क्योंकि रेडियस बढ़ती है, राइट। तो अगर इसको देखोगे तो फ्लोरीन की हाईएस्ट होगी, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इंटरचेंज हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इंटरचेंज करना पड़ता है, यही एक्सेप्शन बोला जाता है, लेकिन एक्सेप्शन का रीजन यही होता है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो ये 2p3 है, डेफिनेटली स्टेटमेंट अपने आप करेक्ट हो गया क्योंकि बिल्कुल सही ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम is the correct order for magnitude of electron gain enthalpy। देखो आयनेशन एंथैल्पी इज डिफरेंट कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, राइट। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय द एटम, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज्ड बाय द एटम आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड गैसेस एटम, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन की सबसे मिनिमम होती है। क्यों मिनिमम होती है? बिकॉज उसके पास एकोमोडेट कराने की स्पेस नहीं है, राइट। तो उसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। तो ऑक्सीजन की लीस्ट होती है, बाकी देखो ऑर्डर एकदम सही दिया हुआ है, सल्फर, सेलेनियम और डाउन द ग्रुप हमारे पास वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती चली जाती है, बिल्कुल सही दिया है। ऑक्सीजन लास्ट है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन एंड एटॉमिक साइज, राइट। तो बिल्कुल सही ऑर्डर है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। Next, the halogen that makes longest bond with the hydrogen, HX। तो HX आपके पास क्या क्या हो गया, लाइक HCl, HI, HBr। तो HI का जो बॉन्ड होता है ना वो लॉन्गेस्ट होता है क्योंकि I एटॉमिक रेडियस हाईएस्ट होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ रहा है, राइट। तो अगर हम HF कंपेयर करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, राइट, तो आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा होगा, तो HI बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट होगी, तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड बोल रहा है तो HI के साथ ही बैक कह रहा है। तो I में कोवेलेंट रेडियस स्मॉलेस्ट, गलत कह दिया क्योंकि कोवेलेंट रेडियस इज मैक्सिमम नॉट द स्मॉलेस्ट, राइट। तो I की जो रेडियस होगी वो हाईएस्ट होगी, स्मॉलेस्ट नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड को देख लो, ग्रुप 15 एलिमेंट EH3। तो ग्रुप 15 के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हमारे नाइट्रोजन फैमिली है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वाली फैमिली। इसमें अगर हम देखें क्या, EH3 इनके हाइड्राइड्स की बात अगर हम करें तो अमोनिया, PH3 फॉस्फीन, H3 है ना, एंटीमनी का है ना, बिस्मिथ। तो जितने भी हमारे पास 15th ग्रुप के जो भी हाइड्राइड्स हैं
तो हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पता होता है कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है। तो ये बोल रहा है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो अमोनिया का होना चाहिए, लेकिन होते नहीं है अमोनिया का। क्यों? अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका नहीं होता। तो जो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? pH3 का होता है। राइट, दिस मस्ट बी क्लियर कि pH3 का जो होता है वो होता है लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिकता है स्टेटमेंट में, क्योंकि बच्चा अमोनिया से हो सकता है, अमोनिया में नाइट्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो नाइट्रोजन वाला जो एलिमेंट है उसके हाइड्राइड का जो होगा वो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा होगा pH3 का, और pH3 में जो एलिमेंट है वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 नहीं होती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है? 5, क्योंकि ये पेंटाक्लोराइड टाइप का भी बनाता है, लाइक PCl5 फॉर्म करता है। दैट मींस इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। तो ये वाला आंसर होगा बी पार्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक आयनिक रेडियस। राइट, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में रेडियस किसकी ज्यादा होगी? भाई मैग्नीशियम की होगी, पहला ही गलत दे दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम तो अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो, है ना, और वहां पे भी क्या है तुम्हारे पास? सेम पीरियड है ऑब्वियसली, दोनों का थर्ड पीरियड है, लेकिन थर्ड पीरियड में भी वहां पे एल्यूमिनियम में 13 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें कितने हैं? मैग्नीशियम में 12 है। डेफिनेटली किसकी रेडियस ज्यादा होगी? मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। अगर मैं करेक्ट ऑर्डर इसका लिखूं तो मैग्नीशियम की होगी, देन एल्यूमिनियम की रेडियस उससे कम होगी एटॉमिक रेडियस की बात करें। और आयनिक की इन्होंने सही दी है क्योंकि ये दोनों हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जो ज्यादा केटाइन होता है उसका रेडियस कम होता है। तो ये वाला ऑर्डर करेक्ट है, लेकिन ओवरऑल गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे गलत कर दिया। करेक्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, द करेक्ट ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? अगर हम देखेंगे तो हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होती है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में डेफिनेटली क्लोरीन की ज्यादा होगी। इवन क्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है, फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट भी कर पाता है। राइट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा क्लोरीन की हाईएस्ट होती है। राइट, तो ये वाला एकदम सही है, और यही सेम चीज सल्फर एंड ऑक्सीजन के साथ भी होगा। तो ये वाला करेक्ट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की लीस्ट होगी। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर पाता क्योंकि रिपल्शन की वजह से, एंड उसका साइज भी छोटा है, देन इस वजह से वो उसको एकोमोडेट नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन गेन तो करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, बट इट कैन नॉट एकोमोडेट। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? ऑर्डर करेक्ट, ऑर्डर एकदम सही दिया हुआ है ना। तो क्लोरीन की हाईएस्ट है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, first is false, second is true. Right, so this was the question, and I think this is the last one. In this they are asking which one is correct. यहाँ पे इन्होंने ABCD ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे करेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ऑर्डर बना के दिया है कि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है। ये तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी तुम लोग को पता, देखो क्वेश्चन रिपीटेडली वही पूछा जा रहा है, बार बार मेटालिक कैरेक्टर, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको पढ़ लो ना, फिर एक बार समझ में आ जाएगा। तो यही चीजें तो पूछी जाएंगी, और क्या पूछा जाएगा तुमसे? ठीक है, तो एक बार उसको अच्छे से पढ़ लो, और इसमें कुछ तुम्हें कैलकुलेट तो करना नहीं है, बैठ के मैथ्स लगानी है या फिर पूरा कॉन्सेप्ट लगाना है, कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, बस एक बार पढ़ लो, समझ के पढ़ना होता है ना। और कुछ जहां पे एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन क्यों है उसको रिलेट करके याद रखो ना। जैसे कि तुम्हें सेम ग्रुप में अगर रख दिया गया है तो क्या उस ग्रुप का हर बच्चा एक जैसा होगा? दे विल बी डिफरेंट, दे विल बी इंडिविजुअली डिफरेंट। राइट, तो इफ यू आर एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, हमें स्टडी को इजी बनाने के लिए दे आर इन द सेम ग्रुप, बट ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टर। राइट, एंड चलो चेक करते हैं इसमें क्या है। फ्लोरीन का फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली हाईएस्ट है, तो ये एकदम सही है। फ्लोरीन के बाद फास्फोरस है, हाफ पीरियड की वजह से ये एक्सचेंज हुआ है, करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने पहले ही बताया था कि क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, चाहे भले ही फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है बिकॉज इट कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द स्पेस। एंड इसमें ऑब्वियसली सही ऑर्डर दिया है। एंड मेटालिक कैरेक्टर में गलत कर दिया, क्योंकि देखो पोटेशियम के बाद में होना चाहिए मैग्नीशियम। राइट, मैग्नीशियम इज मोर मेटालिक देन एल्यूमिनियम, तो ये गलत दे दिया, दिस इज इनकरेक्ट। एंड बेसिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। राइट, तो जो ज्यादा मेटल होगा, जो ज्यादा बेटर मेटालिक कैरेक्टर होगा जिसका, उसके ऑक्साइड्स बेसिक होंगे। तो इन सारे एलिमेंट्स में अगर हम मेटल्स को देखें तो मेटल सबसे हाईएस्ट मेटालिक पोटेशियम है, पोटेशियम, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑर्डर इज करेक्ट। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जब ये इनका मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर करेक्ट है तो इनके बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी करेक्ट हो गया।
तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो यही 4-5 चीजें पूछी गई हैं, राइट। तो A C D नहीं, A B D, C is wrong, right? तो A B D यानी कि B part is your answer. So you can see what kind of questions are there, and obviously there is no formula, only तुम्हें trends पता होने चाहिए periodic table के कि किस type के trends हैं, क्या है, and I think this video was useful, and I'll see you in the next video. My classes for class 12th are starting from 12th of March. If you want, you can join the online classes. From this year onwards, my classes are completely online, and before this I was taking offline classes also, but thank you so much.